I am here with another video, that is acid fast staining. This is the continuation of previous video, that is gram staining. Actually, this is another type of differential staining. First one is gram staining and second one is acid fast staining. So this is the type of differential staining technique. ये differential क्यों है? क्योंकि ये कोई भी दोनों के बीच में difference निकालता है, right? कोई भी दो organism के बीच में. So here to differentiate acid fast and non-acid fast organism, we are using this differential staining technique, that is acid fast staining. तो अगर लास्ट में रिजल्ट में जब हम लोग देखेंगे स्टेनिंग के बाद, तो एसिड फर्स्ट अगर होगा ना, तो दैट विल गिव पिंक कलर अंडर 100x माइक्रोस्कोप. फॉर नॉन एसिड फर्स्ट दैट विल गिव blue color under that 100x light microscopy. This technique is followed by two method. You can use either this Zeal-Nielsen method or Kin-Ion method of staining. Mostly we are using this Zeal-Nielsen method. So first, what is acid fast organism? This is characterized by wax-like impermeable cell wall. Okay. So as you all know that this is the organism. That organism is having cell wall. Okay. This acid fast organism is also having cell wall. But this cell wall is having wax-like coating, which is impermeable to any dye or to any stain. तो ये क्या करते, कोई भी स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो सेल को कलर नहीं होने देता. ठीक है. क्यों impermeable क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्स लाइक कंपोनेंट्स, दैट इज लिपिड, mycolic acid and glycolipid स्पेशली. तो mycolic acid, lipid and glycolipid, ये सब के वजह से impermeable होता है. ठीक है. ड्यू टू दिस impermeability they need a special tanning technique. impermeability को कम करने के लिए, to improve the permeability of cell wall, so that if we add any dye or any stain, it will give color to the cell wall, so that we can identify that organism easily. So we need one special staining or special stain. ठीक है. That's why we are using this acid fast staining technique. What is the example of acid fast organism? That is Mycobacterium species. Okay. Now see, this is the Zeal-Nielsen method, which we are using mostly. Okay. For Zeal-Nielsen, we need reagents. Specially, this reagent is used, PDC. PDC means P for primary stain, the special type of stain, D for decolorizing agent, and C for counter stain. So we need PDC for acid fast staining. This is very easy to remember, right? This PDC is very easy to remember. So what type of primary stain we are using? ZNCF. This is the special type of acid fast stain. This Zeal-Nielsen carbol-fusin. ये special क्या है इसमें? If we use normal carbol-fusin, that is basic carbol-fusin, that many acid fast bacteria can't stain by this common stain carbol-fusin. Why? Because of it is prepared in aqueous solution. भी aqueous solution में बनता है normal carbol-fusin और basic carbol-fusin. तो इसलिए क्या होता है, normal जो carbol-fusin होता है उस पे जो wax like components होता है outer membrane में, वो dissolve नहीं हो सकता है. उसके लिए, उसको dissolve होने के लिए क्या चाहिए? Phenolic compound. That's why we are preparing this special type of stain which is having phenolic solution. So ZnCF prepared in a phenolic solution, and in this phenolic solution that waxy coating solubilizes and helps for the easy penetration of that stain or dye, so that it will give color to that component or to that cell wall structure. Okay. Second is decolorizing agent. ये क्या करता है, जो कलर ले लिया, acid first, non acid first, both color ले ले, फिर जब when we will add the decolorizing agent, it will remove the color from non-acid fast bacteria. Okay, non-acid fast bacteria, because this is very much strong decolorizing agent, because of the presence of 3% acid and 95% ethanol. It will remove the color from non-acid fast bacteria, so that non-acid fast bacteria become colorless. So to give color, we are using counter stain. To stain non-acid fast bacteria, we are using counter stain. काउंटर स्टेन में क्या यूज करते हैं? 1% मैलाचाइड ग्रीन या फिर 0.3% मिथिलीन ब्लू. ठीक है. भी क्या होता है प्रोसीडियर में अगर देखें तो ये जो हमारा प्रोसीडियर है ना, जिसमें फर्स्ट प्राइमरी स्टेन यूज होता है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड में स्मेयर बना लेंगे. देन वी आर यूजिंग प्राइमरी स्टेन कार्बोल-फ्यूसिन ZnCF. ये प्राइमरी स्टेन हम लोग यूज किए. जैसे ही प्राइमरी स्टेन यूज किया ना, पहले ये दोनों अनस्टेन्ड, एसिड फर्स्ट, नॉन एसिड फर्स्ट, जैसे ही प्राइमरी स्टेन यूज करती है,
कार्बन फ्यूजिंग दैट इज ZnCF, तो ये सारे पिंक कलर हो गए। अभी क्या हुआ ना, हम लोग उसको क्या देंगे, स्टीम देंगे। हॉट वाटर बाथ के ऊपर इस स्लाइड को रख दिया, तो क्या हुआ, इजीली ये जो वैक्सी कोटिंग है, दैट स्टीमिंग प्रोसेस विल improve the permeability of that stain to get the stain the cell wall very easily। तो जैसे हम लोग स्टीम दे रहे हैं नीचे से, तो उसका जो सेल वॉल है ना, उसका परमेबिलिटी इंक्रीज होने लगता है, तो हम लोग जो स्टेन यूज किया वो उसको इजीली कलर कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हीट यूज किया। ठीक है, हम लोग हीट यूज कर दिया सो दैट इट कैन इजीली स्टेन दैट सेल वॉल ऑफ एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फर्स्ट बोथ। ओके, but this steaming process is mainly for acid first bacteria so that it can improve the permeability of that waxy coating। अभी permeability increase करने के लिए दोनों हेल्प किया, एक स्टीमिंग और 2 नंबर फेनोलिक सॉल्यूशन। अभी ये कलर हो चुका, कलर हो जाने के बाद अभी क्या होगा, अभी हम लोग ऐड करेंगे डीकलराइजर। जैसे ही डीकलराइजर ऐड किए, देखो जो नॉन एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर से कलर रिमूव हो गया, पर एसिड फर्स्ट से नहीं रिमूव हुआ। ये स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर है, तो नॉन एसिड फर्स्ट से बहुत ही फास्टली वो कलर रिमूव कर दिए, पर इसका कलर वही है अभी भी, क्योंकि उसके अंदर स्टेन अभी भी है, ये पिंक कलर ही है अभी भी। लास्ट में अभी जब कलर निकल चुका है, तो हम लोग ऐड करते हैं मिथिलीन ब्लू या फिर मैलाचाइट ग्रीन। जैसे मे भी हम लोग मिथिलीन ब्लू यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मिथिलीन ब्लू जैसे यूज किया ना, तो क्या हुआ, ये कलरलेस से ब्लू कलर हो गया, और ये तो पिंक कलर ही है, क्योंकि ऑलरेडी पिंक है, तो ये ब्लू कलर लेगा ही नहीं, तो ये अल्टीमेटली पिंक कलर हो गया, और ये अल्टीमेटली ब्लू या फिर ग्रीन कलर होगा। राइट, अगर मैलाचाइट ग्रीन ग्रीन, अगर मिथिल ब्लू ब्लू कलर। ये है इसका प्रोसीडियर। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टेन। जैसे ही प्राइमरी स्टेन दिए, हमारा एसिड फर्स्ट और नॉन एसिड फर्स्ट दोनों क्या कलर हुआ, पिंक कलर। जैसे ही फिर हम लोग डीकलराइजर यूज किए, नॉन एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से कलर रिमूव हो गया, सो इट बिकम कलरलेस। बट एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से नहीं हो पाए, क्योंकि एक बार अगर इट गेट स्टेन्ड, देन इट विल नॉट रिमूव द कलर इवन आफ्टर यूजिंग ऑफ द डीकलराइजर। सो इससे कलर रिमूव हो गया। सो अभी इसको कलर करने के लिए वी आर यूजिंग काउंटर स्टैंड। व्हाट टाइप ऑफ काउंटर स्टैंड वी आर यूजिंग, 2 टाइप। मे बी यू कैन यूज मिथिलीन ब्लू और मे बी दैट मैलाचाइट ग्रीन। दोनों में अगर मिथिलीन ब्लू यूज कर तो ब्लू ब्लू कलर का नॉन एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया दिखेगा, अगर ग्रीन तब दिखेगा जब मैलाचाइट ग्रीन आप लोग यूज करोगे। होगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो बैक्टीरिया विच आर स्टेन्ड बाय प्राइमरी स्टेन ZnCF, तो वो क्या होता है, एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया दैट बिकम पिंक। Bacteria which are stained by counter stain malachite green or methylene blue, they become green or blue. They are non-acid fast bacteria, and we can see these in 100x light microscope. So I already explained the principle. जैसे ही कार्बोल फ्यूजिन हम लोग ऐड करते हैं एज प्राइमरी स्टेन, दैट मॉडिफाइड कार्बोल फ्यूजिन, तो क्या होता है, और हम लोग जैसे ही स्टीम करते हैं स्मेयर को, तो स्टीम करने के साथ क्या होता है, जो सेल वॉल के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग है वो परमेबिलिटी इंक्रीज होने लगता है उसका। ठीक है, परमेबिलिटी जैसे ही इंक्रीज हो गया, फेनोलिक सॉल्यूशन के वजह से क्या हुआ, that mycolic acid and glycolipid and lipid that will soluble in that phenolic solution of carbon fusion, so it will get color, that acid first and non-acid but both, that is pink color। after that हम लोग क्या यूज करते हैं, डीकलराइजर। डीकलराइजर जैसे यूज करते हैं, नॉन एसिड फर्स्ट के ऊपर से वो कलर रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर है। 3% एसिल 95% इथानॉल यूज करते हैं, बट ये एकदम एक बार कलर होने के बाद ये रिमूव नहीं होता है। ठीक है, फ्रॉम एसिड फर्स्ट, तो ये कलर रिटेन कर लेते हैं। सो वी आर यूजिंग मिथिलीन ब्लू एज अ काउंटर स्टैंड। जैसे काउंटर स्टैंड किया, सो इट विल गिव ब्लू और पर्पल कलर फॉर नॉन एसिड फर्स्ट। ओके, सो एसिड फर्स्ट पिंक ड्यू टू प्राइमरी स्टेन ZnCF, नॉन एसिड फर्स्ट पर्पल और ब्लू और ग्रीन ड्यू टू मिथिलीन ब्लू और मैलाचाइट ग्रीन, दैट इज काउंटर स्टैंड। ये जो किनियन मेथड है ना, ये उससे बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम लोग वेटिंग एजेंट के हिसाब से क्या यूज करते हैं, उधर स्टीम यूज करते हैं कि स्टीम उसका वेटिंग करते हैं सेल वॉल का, सो दैट परमेबिलिटी इंक्रीज होता है। पर अभी इधर हम लोग वेटिंग एजेंट के हिसाब से क्या यूज करते हैं, स्टीमिंग के को हम लोग रिप्लेस करते हैं, लोग टर्कीटोल 7 यूज करते हैं एज वेटिंग एजेंट विथ प्राइमरी स्टेन, दैट विल इम्प्रूव द परमेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोल फ्यूजन ऑफ प्राइमरी स्टेन। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन किनियन मेथड एंड जील नील्सन मेथड। दिस इज द मॉडिफाइड वन। ओके, पर हम लोग सबसे ज्यादा जील नील्सन ही यूज करते हैं। अभी एसिड फर्स्ट स्टेनिंग का एप्लीकेशन कहाँ है, सबसे ज्यादा डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, बिकॉज एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया कौन है,
वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस के डायग्नोसिस में सबसे ज्यादा यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में होते हैं। सो अगर यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी कमेंट्स। थैंक यू।